السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، شادی یا نکاح یہ مبارک اور پاکیزہ الفاظ ہیں۔ جب انسان کے کانوں سے یہ لفظ ٹکراتا ہے تو انسان کے دل و دماغ کے اندر پاکیزہ محبت کا تصور آتا ہے۔ شادی یا نکاح انسان کے زندگی کا وہ خوشنما لمحہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ اس رشتے سے جڑ جانے کے بعد ایک شخص اپنے زندگی کی نئی شروعات کرتا ہے، اس کے سوچ اور فکر کی حالتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد دو جسم آپس میں ایک جان کی طرح ہو جاتے ہیں، جس کا نقشہ قرآن کریم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم یعنی مرد اپنی بیویوں کے لباس ہیں اور بیویاں اپنے مردوں کے لباس ہیں، جس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی عزت ہے اور شوہر اپنے بیوی کی عزت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ رشتہ اتنا زیادہ بابرکت ہے اور اتنا زیادہ مبارک ہے تو اس کی بنیاد بھی پاکیزگی پر ہونی چاہیے۔ میرے اس مختصر سے تمہید سے آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ایک شخص جب اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرے یا کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کر کے لائے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے، کس بنیاد پر وہ کسی کو اپنی بیٹی دے یا کسی کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئے۔ اس الجھے ہوئے اور مشکل سوال کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی دے دیا ہے، لیکن ہم اس بات کو جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر انسان نکاح کیوں کرتا ہے، شادی کیوں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، جسمانی صلاحیت اس کی اچھی ہو، مضبوط ہو اور اخراجات کی بھی طاقت رکھتا ہو، یعنی بیوی کی ضرورتوں کو وہ پوری کر سکتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا شخص نکاح ضرور کرے، نکاح اسے کرنا چاہیے۔ لیکن جو طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور جس کے لیے آپ نے کہا کہ جو نکاح کرے اس کا فائدہ آپ نے بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح جو ہے شادی کر دینے کے بعد انسان کی نگاہوں کے اندر شرم اور حیا آ جاتی ہے، یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، انسان کے نگاہ کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے وہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ محترم حاضرین، انسان نکاح کس بنیاد پر کرے، شادی کس بنیاد پر کرے، لڑکی کا انتخاب کس بنیاد پر کرے، یا اپنی بیٹی کسی کے حوالے کر رہا ہے تو داماد کا انتخاب کس بنیاد پر کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، کہ کسی بھی عورت سے نکاح یا شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں جسے دیکھ کر کے انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، کسی بھی عورت کو اپنی زوجیت میں لیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ پہلی چیز جو آپ نے بیان فرمائی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے یعنی خاندان کی وجہ سے، پرسنالٹی کی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دین کی بنیاد پر۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा का, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, दीनदार लड़की ही से निकाह करना, दीनदार लड़की से ही शादी करना, दीनदार लड़की को ही अपना बहू बना कर लाना, दीनदार लड़की को ही अपनी बीवी बनाना। मेरे भाई, और दीनदारी का एहसास तो आदमी को उस वक्त होता है जब वो बाप बनता है, उसके घर बेटी पैदा होती है, उसके घर के अंदर जब बेटा पैदा होता है। हालांकि इस मरहले से पहले जब कोई भी निकाह करने का इरादा करता है तो उसके सर पर एक भूत सवार होता है कि मेरी बीवी बस खूबसूरत होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, हूर के जैसी होनी चाहिए। और ये ख्वाहिश तो वो लोग भी करते हैं कि जिनके मुंह से खुद 3 मीटर दूर से ही बदबू आती है। दिन भर गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट खाने वाले भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी बीवी परी जैसी हो, मेरी बीवी हूर जैसी हो। मेरे भाइयों, इस्लाम इस बात से नहीं मना करता, इस्लाम आपको इस बात से नहीं रोकता कि आप अपने लिए सुंदर और खूबसूरत लड़कियों का इंतखाब करें। आपको इस्लाम इस बात से नहीं मना करता, लेकिन इस्लाम इस बात से जरूर रोकता है कि दीनदार लड़की को महज उसके खूबसूरत ना होने की वजह से उसको ठुकरा दिया जाता है, उसका इनकार कर दिया जाता है। इस्लाम इस बात से सख्ती से इनकार करता है। आप याद रखें, निकाह के बाद जब आदमी बाप बनता है, शादी होती है, बाप बनता है, उसके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके बच्चे जब इस्लाम के तरीके पर नहीं चलते, वो अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाना चाहता है, तो उस वक्त बाप ये सोचता है कि अपने बच्चों की तरबियत में इस्लामी तरीके पर करूं। लेकिन बीवी नमाज ही नहीं पढ़ती है, बीवी अल्लाह और उसके रसूल को जानती ही नहीं है, शादी के वक्त दीनदारी देखा ही नहीं था, सिर्फ खूबसूरती और भीख के चक्कर में, यानी जहेज भीख के चक्कर में आदमी ने निकाह कर लिया। अब जब उसके बच्चे बात नहीं मानते, तब उसे एहसास हो रहा है कि दीनदारी क्या चीज है। आप इस बात को समझें, जब किसी शख्स के सामने 2 रास्ते होते हैं, एक होता है नेकी का रास्ता और जिसके अंदर कठिनाइयां होती है, मुश्किलात होते हैं, दूसरा रास्ता होता है बुराई का रास्ता जिसमें आजादी होती है और आसानी होती है। अब आप इसको इस तरह से समझें, फर्ज करें कि किसी ने खूबसूरती की वजह से किसी दीनदार लड़की के बजाय किसी ऐसी औरत से निकाह कर लिया, ऐसी लड़की से निकाह कर लिया जिसे दीन और इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। अब आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस्लाम की रोशनी में परवान चले, उनकी तरबियत इस्लामी तरीके पर हो। आपके बच्चे सीरियल देखते, टीवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, आप उन्हें मना करने की कोशिश करो कि बेटा टीवी मत देखो, सीरियल मत देखो, और आपने उनके लिए जिस अम्मी का इंतखाब किया है वो बैठ करके हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देख रही हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देख रही हैं। अब आप यहां पता करें कि जिन बच्चों ने अपने मोबाइल के अंदर, अपने टीवी के अंदर उन एक्टर्स को देखा जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों को अपनी तरफ मायल कर रही हैं, अपने गाने से और अपने डांस से इस नस्ल को बिगाड़ रही हैं, आपके बच्चों को आपकी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, बल्कि वो मोबाइल के अंदर जो एक्टर्स बात कह रही है उनको वो बात अच्छी लगी, क्योंकि उनकी अम्मी तो उन्हीं को फॉलो कर रही हैं। और बच्चे याद रखिए, सबसे ज्यादा अपनी वालिदा को फॉलो करते हैं, अपने अम्मी की इक्तदा करते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा भी आएगा कि आपकी बातें सिर्फ आपके बच्चों को नहीं बुरी लगेंगी। अगर आपने इसी बात को 2 बार, 4 बार, 5 बार अपने बच्चों को टोक दिया, क्या बेटा दिन भर आप फिल्में ही देखते रहते हो, दिन भर ये करते रहते हो, दिन भर, आपके बच्चों की आपकी बातें भी ना पसंद आएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके बच्चे आपसे भी नफरत करने लगेंगे, आपको भी नहीं पसंद करेंगे, और ये कहेंगे कि फला के वालिद को देखो, फला के डैडी को देखो, जब नई फिल्म आती है, नई मूवी आती है, तो अम्मी के साथ, अपने घर वालों के साथ लेकर के खुद दिखाने जाता है। और एक हमारे वालिद भी हैं कि हरदम टोक रहे हैं, हरदम रोक रहे हैं। आप याद रखिए, इस गुनाह के, इस वबा के, इस नाफरमानी के सबसे पहले जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों की पैदाइश से पहले ही सबसे पहले उनका हक जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका हक आप पर यह था कि जब आप उसके लिए उसकी मां का इंतखाब कर रहे थे, अपने लिए बीवी को तलाश रहे थे, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि नेकी की बुनियाद पर आप बीवी को तलाश करते, आप दीन की बुनियाद पर बीवी का इंतखाब करते, तो आपको यह दिन देखना ना पड़ता। मोहतरम हाजरीन, आप याद रखें, बहुत सारी शादियों को, बहुत सारे निकाह को जो खूबसूरती की बुनियाद पर, जो दौलत की बुनियाद पर होता है, उसे टूटते हुए, उसे बिगड़ते हुए आपने अपनी आंखों से देखा होगा। मैं जाती तौर पर ऐसे निकाह को जानता हूं, मैं खुद ऐसे निकाह को जानता हूं जिनको बनाने में, जिस रिश्ते को तलाश करने में कई साल लग गए, मगनी होने के बाद कई महीने रुक गए, लेकिन
दीनदारी उसके अंदर नहीं थी। नतीजा क्या निकला? शादी करने में ज्यादा वक्त लगा लेकिन टूटने में उसे वक्त नहीं लगा। याद रखें, इंसान के जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया, इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी नेक बीवी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये दुनिया पूरी की पूरी दुनिया जिंदगी गुजारने का सामान है। व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, किसी भी इंसान के जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया, किसी भी इंसान के जिंदगी का सबसे कीमती दौलत उसकी नेक बीवी है। जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनदार लड़की दे दे, दीनदार बीवी दे दे, इस रूह जमीन पर उससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का मुस्तहिक होने वाला कोई और शख्स नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अला उखबिरुका बिखैरि मा यकनिजुल मरउ, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि इंसान के लिए सबसे कीमती खजाना क्या है, किसी भी शख्स के लिए सबसे कीमती खजाना क्या है। और याद रखें, बीवी का इंतखाब आप करते हैं, अपने बच्चों के लिए उसकी मां का जो इंतखाब करते हैं, जाहिर है आपको तो मॉडलिंग करानी नहीं उसे ले जाकर के, दुनिया को तो उसका हुस्न दिखाना नहीं है, आपको एक नस्ल परवान चढ़ानी है उस बीवी के जरिया। तो लिहाजा बीवी की जो बेसिक जिम्मेदारी होती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि इंसान का सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती खजाना क्या है? आपने बयान फरमाया कि अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। कैसी नेक बीवी? उसकी जिम्मेदारियां क्या है? आपने बयान फरमाया इजा नजरा इलैहा सर्रतहु, जब उसका शौहर उसकी जानिब देखे तो उसकी बीवी उसे खुश कर दे। और ये एक नेक बीवी की ही सिफत है कि आदमी काम कर रहा है, दिन भर का थका मादा है, अपने घर के अंदर आता है, वो ख्वाहिश रखता है कि घर के अंदर कोई ऐसा हो जो उसकी फिक्र कर रहा हो कि मेरा शौहर बाहर है, अल्लाह करे वक्त पर आ जाए। कोई घर के अंदर आपके लिए फिक्र करने वाला हो, आपके लिए दुआएं करने वाला हो, आप बाहर जाएं, आपके लिए अपने दिल के अंदर गम रखने वाला हो। और अगर आप आजाद ख्याल की और जो बापर्दा औरतें नहीं है उनसे निकाह नहीं करेंगे, आप घर से बाहर से थके हुए आए, जब घर के अंदर पहुंचे तो पता चला बीवी तो शॉपिंग करने गई है, बीवी तो ऑफिस में है, बीवी तो घूमने गई है, तो उस वक्त आपके ऊपर क्या बीतेगी? इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान का सबसे कीमती सरमाया उसकी नेक बीवी है, उसकी बीवी है। जब शौहर उसकी जानिब देखे तो वो उसको खुश कर दे। व इज़ा अमरहा अताअतहु, जब उसका शौहर अपनी बीवी को कोई हुक्म दे तो उसकी फरमाबरदारी करे, उसकी इताअत करे, उसके हुक्मों को टाले नहीं, बल्कि हर बात जो उसका शौहर उसको कहता है उसको तस्लीम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया व इज़ा गाबा अन्हा हफिज़तहु, जब उसका शौहर परदेश चला जाए, जब उसका शौहर घर से कहीं दूर चला जाए तो वो अपने इज्जत की हिफाजत करे, वो अपने इज्जत की हिफाजत करे। ये होता है एक बीवी की जिम्मेदारियां जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और इस जिम्मेदारी को वही औरत अदा कर सकती है जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, जिसके दिल के अंदर तकवा होगा, जिसके दिल के अंदर परहेजगारी होगी, जिसको अल्लाह और उसके रसूल से हकीकतन मोहब्बत होगी। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह करना हो, शादी करना हो तो दीनदार लड़कियों का इंतखाब किया करें। खासकर आज का जो हमारा माशरा है इसमें तो दीनदार लड़कियों की अहमियत तो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने खुद मुशाहिदा किया होगा कि आज मर्दों की हैसियत घरों के अंदर बस सिर्फ इतनी है कि आप काम करें, पैसा कमाएं और घर चलाएं। लाइट खराब हो गई है घर की, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, लाइट बनवाएं। बाजार से आ रहे हैं, सब्जी लेकर आए, फल लेकर के आए, गोश्त लेकर के आए। अगर आपका घर किराए का है तो किराया भरे, बच्चों की फीस भरे। बस इतनी जिम्मेदारियां आज मर्दों की घरों के अंदर रह गई है। बच्चों की तरबियत का मुकम्मल दारोमदार उनकी वालिदा पर आ चुका है। और अगर आपने अपने बच्चों के लिए नेक सालेह दीनदार बीवी का इंतखाब नहीं किया है तो आप इस बात की ख्वाहिश हरगिज ना रखें कि आपका बच्चा बड़ा होकर के आपकी फरमाबरदारी करेगा, आपकी बेटी बड़ी होकर के आपकी इताअत करेगी, पर्दा करेगी, बाहया बनेगी, बाइज्जत बनेगी और जिसके जरिया इस्लाम का वो नाम रोशन करने की कोशिश करेगी। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आपने अपने बच्चों के हुकूक को जाया कर दिया है। आपने उस चीज को जो उन बच्चों का हक था आपने दिया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको भी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मोहतरम हाज़रीन, आप याद रखें कि आज के माशरे में अगर किसी को नेक बीवी मिल जाती है, उसी पर अगर अल्लाह के फजल करम से अगर कोई मुअल्लमा मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा। लेकिन एक मुसीबत हमारे माशरे की और है, जानते होंगे आप कि अगर किसी को अल्लाह ताला मुअल्लमा दे देता है तो फिर उसका मुआजना लोग हजरत आयशा सिद्दीका से करने लगते हैं कि भाई वो भी नेक थी, मुअल्लमा है। मेरे भाइयों,
जिस लड़की से आप निकाह कर रहे हो, जिससे आप शादी कर रहे हो, वो मुअल्लिमा है, दीनदार है, तकवा और परहेजगार है और अल्लाह से खौफ करने वाली है, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करने वाली है, लेकिन वो भी है इसी दौर की, इसी मुआशरे की, इसी दौर में वो पली बड़ी है। जाहिर सी बात है उसके अंदर भी कुछ खामियां होंगी, लेकिन उन औरतों से तो लाख दर्जा बेहतर होंगी जो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर होती हैं। आप जानते होंगे इस बात को, जो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर होती हैं उन लड़कियों से तो कई गुना अफजल और बेहतर होंगी। आज के इस मुआशरे में 100% कोई भी दुरुस्त नहीं है। आप खुद, मैं खुद 100% हम में से कोई दुरुस्त नहीं है। अगर हम खुद 100% दुरुस्त नहीं है तो जाहिर है हमें दूसरों के सिलसिले में ख्वाहिश भी नहीं रखनी चाहिए। आप याद रखें, अगर आपने अपने लिए अच्छी बीवी का इंतखाब किया है, नेक बीवी का इंतखाब किया है, तो याद रखें वो खुद जन्नत की मुस्तहिक। आज के दौर में अगर आपको नई बीवी मिल जा रही है, अच्छी बीवी मिल जा रही है, दीनदार बीवी मिल जा रही है, और अगर इस मुआशरे में किसी को ऐसी बीवी मिल जाए कि वो आपके इताअत के बगैर, आपकी फरमाबरदारी के बगैर बाहर नहीं जाती है, आपसे जब तक इजाजत ना मिल जाए वो बाहर ना जाए, आपकी इजाजत के बगैर किसी से वो बात ना करे, आपकी इजाजत के बगैर आपके बटुए से पैसा ना निकाले, आपकी इजाजत के बगैर किसी को घर के अंदर ना जाने दे, तो याद रखिए इस मुआशरे के अंदर अगर किसी को ऐसी लड़की मिल जाती है, किसी को ऐसी बीवी मिल जाती है, तो उसके लिए अलग से खुशखबरी, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसी औरत जन्नती भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि कोई भी औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने शौहर की इताअत करती है, फर्मा बरदारी करती है, अपने इज्जत की हिफाजत करती है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया क़यामत के दिन उसको कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से तुम जाना चाहती हो चली जाओ जन्नत के अंदर। अल्लाह अकबर। आप याद रखें, अगर अल्लाह ताला आपको ऐसी बीवी दे देगा जिसके लिए इतनी अजीम बशारत है कि अल्लाह हुक्म देगा, अल्लाह के फरिश्ते हुक्म देंगे जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहो चले जाओ, क्या वो अकेले जन्नत में जाना पसंद करेगी? आपके अंदर अगर कोई खराबी आएगी दीन के मसले को लेकर के तो आपकी भी इस्लाह करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात याद रखें, जिस तरह से लड़की के इंतखाब में लड़के वाले गलती करते हैं, इसी तरह से दामाद के इंतखाब में लड़की वाले भी गलती करते हैं। किसी के यहाँ भी जब निकाह या शादी की बात होती है तो सबसे पहले जो दामाद के सिलसिले में सवाल किया जाता है कि उसकी अर्निंग क्या है, कमाई क्या है, कितना पैसा कमाता है, कारोबार क्या है, बेटी को खिला सकता है या जिला सकता है, नहीं खिला सकता है। ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद बेटी के साथ साथ दामाद की भी परवरिश हमको भी पूछना चाहिए, जानना चाहिए, आपका हक है, आप उसको अपनी बेटी दे रहे हैं, आपका यह हक है। लेकिन सबसे पहले चीज जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा आताकुम मन तर्दूना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन आरिज़। जब तुम्हारे पास किसी ऐसे लड़के का रिश्ता है, तुम्हारी बेटी के लिए किसी ऐसे लड़के का रिश्ता है जो दीनदार हो, बाअखलाक हो, तकवा वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, और उसके अखलाक से, उसके दीन से तुम राजी हो, तो अपनी बच्ची का निकाह उसके साथ कर दो। आपने बयान फरमाया अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बहुत बड़ा फसाद फैल। मैं आपको जमीनी हकीकत बता देना चाहता हूं कि अगर एक आदमी जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, जो बाहया है, जो अल्लाह से डरता है, जिसके दिल के अंदर तकवा है, वो गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, वो ये सही है बात कि हर ईद पर आपकी बेटी को, आपकी बच्ची को नए जोड़े नहीं दिला सकता, उसके ख्वाहिशात के मुताबिक महंगे महंगे कपड़े उसे नहीं दे सकता, हर हफ्ते उसे शॉपिंग नहीं करा सकता, उसको मॉल नहीं ले जा सकता, उससे पिकनिक नहीं करवा सकता। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर वो आदमी अल्लाह से डरता है तो आपकी बेटी पर कभी जुल्म नहीं करेगा, आपकी बेटी पर कभी वो जुल्म नहीं करेगा, आपकी बेटी के हक के साथ वो कभी खयानत नहीं करेगा। शादी आपके बेटी से किया और बाहर चक्कर किसी और के साथ है, ऐसा उस शख्स के साथ नहीं होगा। वो अपने बीवी के साथ वफा करेगा, अपने बीवी की इज्जत करेगा, उसके हुकूक को वो जाया नहीं करेगा। इसलिए जब दामाद का भी इंतखाब करें, लड़के का भी इंतखाब करें, तो सबसे पहले देखें कि वो दीनदार है या नहीं है, दीनदार है या नहीं। आजकल एक बहुत बड़ा फितना जो हमारे माशरे के अंदर आ चुका है कि निकाह की बात जब होती है तो उमूमन लड़के वाले भी या लड़की वाले भी ये बात कहते हैं कि भले से नमाज नहीं पढ़ता है, शादी हो जाएगी पढ़ने लगेगा, शादी हो जाएगी बेटी सुधार देगी। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है।
आप दीन के मसले को लेकर तो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने तो वादा किया है कि तुम में से अगर कोई फकीर हो, तुम में से अगर कोई मुहताज हो, तुम में से अगर कोई लाचार हो, यानी दुनियावी दौलत उसके पास ना हो, आप उसका शादी कीजिए, उसका निकाह कीजिए। अल्लाह ने कहा अल्लाह अपने फजल से उन्हें बेनियाज कर देगा, अल्लाह उन्हें गनी कर देगा, अल्लाह उन्हें मालदार कर देगा। जिस चीज का वादा अल्लाह ने किया है कि मैं दूंगा, उसके साथ हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दीन के मसले को लेकर तो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं कि निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगी, उसके बाद में शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, उसके बाद में वो आदमी नमाज पढ़ने लगेगा, रोजा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। निकाह के बाद सुधरते बहुत कम लोग हैं, लेकिन बिगड़ते ज्यादा लोग हैं। इसलिए जब भी दामाद का इंतखाब करें तो दीनदारी की बुनियाद पर करें, तकवा की बुनियाद पर करें, इखलास की बुनियाद पर करें, हुस्न अखलाक की बुनियाद पर करें। और जब आप अपने लिए बीवी का इंतखाब करें या अपने बेटे के लिए बहू का इंतखाब करें तो यही चीज देखें कि वो दीनदार है या नहीं, अल्लाह से डरती है या नहीं। और आपको मैं अपने अल्फाज में अगर बताऊं कि निकाह करना हो तो सबसे पहले ये देखो कि लड़की घरेलू है या नहीं। घरेलू समझे आप इस बात से। घरेलू का मतलब यह होता है बाप के सामने रही है, बचपने से लेकर जवानी तक उसकी परवरिश हुई है, भाई की निगरानी में, बाप की निगरानी में, माँ की निगरानी में, अपने घर के अंदर पली बड़ी, मस्जिद से और घर से उसका ताल्लुक था, तालीम हासिल किया, या इसी तरह से अपने घर के अंदर महदूद रह गई, वहां से निकल करके आपके घर चली आएगी। इसमें आपको एक फायदा क्या होगा जानते हैं? ये हमारा मुआशरा इस समय इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, मैं हर आजाद औरत पर उंगली नहीं उठा रहा हूं कि सारी की सारी बेहया होती हैं, नहीं। बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जो पर्दा तो नहीं करती हैं, गलत करती हैं, पर्दा करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने शौहरों के साथ वफा करती हैं, बेवफाई नहीं करती हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी पाई जाती हैं। लेकिन जो औरत बापर्दा नहीं होती है, वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बाहर किसी न किसी से उसका ताल्लुक दोस्ती जरूर होता है। दोस्ती, चाहे दूसरा गलत ताल्लुक हो ना हो, लेकिन मुआशरे के हिसाब से ताल्लुक जरूर होता है। अब आप फर्ज करें कि ऐसी लड़की से आपका निकाह हो गया या किसी ने निकाह कर लिया, अब शादी के कुछ महीनों के बाद उस लड़की के पास उसके पुराने दोस्त का फोन आता है। अब लड़की ने नंबर देखा, उसको डर लग गई, कांपने लगी कि मेरा शौहर कहीं देख ना ले, और आपने देख लिया, आपने देख लिया, फोन उठाया तो निकला कि फला साहब हैं, फला आदमी है। अब आपको तो गुस्सा आएगा, शैतान को तो मौका मिल गया। आपकी बीवी लाख कसम खाएगी कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बुरा रिलेशन इसके साथ मेरा नहीं है, लेकिन शैतान तो कहेगा ना आपको कि भाई इसका काम है कसम खाना, अगर ये इतनी ही अच्छी होती तो इसके साथ इसका ताल्लुक ही क्यों होता। शैतान आपको वसवस, और वहीं से दिल और दिमाग के अंदर, मोहब्बत के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर दरार पैदा हो जाएगी। इसलिए जब घरेलू लड़की का इंतखाब करेंगे जो अपने घर में पली बड़ी, वहां से निकलकर आपके घर आ गई, तो ये टेंशन ही आपको नहीं होगा, इस टेंशन से आप मुकम्मल तौर पर फ्री रहेंगे। इसलिए याद रखें, दीनदारी की बुनियाद पर लड़कियों का इंतखाब करें। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है, किसी दीनदार लड़की को दौलत की वजह से, हसब और नसब की वजह से या खूबसूरती की बुनियाद पर अगर ठुकरा देता है तो गोया कि अपनी जन्नत को ठुकरा रहा है। क्योंकि नेक बीवी आपके घर को जन्नत बना सकती है और बुरी बीवी आपके घर को दोज़ख बना सकती है, आपकी जिंदगी को मौत से बदतर बना सकती है। इसलिए जब भी निकाह करें तो अच्छी बीवियों के साथ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक बार सहाबा के दरमियान, क्या मैं तुम्हें यह ना बतला दूं कि जन्नती औरत कौन है? सहाबा ने सवाल किया, रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आप जरूर बतलाएं कि जन्नती औरत कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर वो औरत जन्नती है जो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली है, उसका शौहर जब उससे नाराज हो जाता है या उस औरत के साथ कोई बदसलूकी हो जाती है, उसका शौहर उसे बुरा भला कह देता है, कुछ भी कह देता है, शौहर उससे नाराज हो जाता है तो अपने शौहर के पास जाकर के कहती है, ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, जब तक आप मुझसे राजी नहीं हो जाएंगे, जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप मेरी गलतियों को माफ नहीं करेंगे, मैं उस वक्त तक बनाओ सिंगार नहीं करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐसा मादा अगर किसी औरत के अंदर मौजूद है तो वो हर औरत जन्नती है। मेरे भाइयों, अगर आप ऐसी लड़कियों का इंतखाब करेंगे, ऐसी बीवियों का इंतखाब करेंगे तो यकीन माने आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी।
और जहेज की बुनियाद पर, हसब नसब की बुनियाद पर ये सारे रिश्ते पायदार नहीं होते हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं। आपने खूबसूरती की बुनियाद पर किया, कोई हादसा पेश आ गया, लड़की की खूबसूरती चली गई, जाहिर सी बात है जिस बुनियाद पर आपने निकाह किया वो बुनियाद खत्म, तो जाहिर है रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अब माल दौलत के चक्कर में कि लड़की का बाप बड़ा मालदार है, निकाह करेंगे, लाखों का भीख हाथ लगेगा, लाखों का जहेज हाथ में लगेगा। अब शादी हुई, बीवी घर आई, जहेज कुछ नहीं मिला, सास भी ताना देगी, नंदे भी ताना देंगी, शौहर खुद मोहब्बत नहीं करेगा अपनी बीवी से और कहेगा कि मैंने तो सोचा था तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, मुझे फला फला चीज मिलेगी, कुछ नहीं मिला। लिहाजा इधर उधर के इल्जाम लगाकर बीवी को उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। और हसब नसब का मामला जहां तक है, अगर आदमी ये सोचता है कि मैं शेख हूं, मैं पठान हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, तो रिश्तेदारी अपने ही खानदान के अंदर करूंगा, आप करें कोई मामला नहीं। लेकिन अगर ऐसा तस्वुर है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे अफजल कोई नहीं, तो याद रखें आप दुनिया के सबसे हकीर और जलील आदमी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही है कि आदमी के बुरा होने के लिए बस इतना ही काफी है कि वो अपने भाई को अपने आप से नीच जाने। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, आखिरत को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, बीवी की जो बेसिक जिम्मेदारी है मैंने बताया कि आप उसको देखें तो आपको सुकून मिले, आपको खुशी मिले। आप जब बाहर जाएं तो आपको इत्मीनान हो कि मेरे बच्चे महफूज हाथों में हैं, मेरी इज्जत महफूज है, मेरी बीवी कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। अगर इन तमाम झमेलों से छुटकारा चाहते हो तो आपको नेक बीवी का इंतखाब करना पड़ेगा। नेक बीवी कैसी भी हो, उसकी सूरत कैसी भी हो, कितनी ही गरीब और लाचार क्यों ना हो, हसब और नसब उसका कैसा भी हो, लेकिन अगर आपको नेक बीवी मिल जाती है तो उसको हाथ से ना जाने दें। यह अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है और अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि निकाह करने के लिए कि निकाह किससे किया जाए। आपने बयान फरमाया कि अपने शौहरों से मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चा देने वाली औरतों से निकाह करो, क्योंकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत को देखकर फख्र करूंगा। और जाहिर है वो बीवियां अपने शौहरों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं जो नेक होती हैं, जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है। मेरी तमाम गुफ्तगू का बस खुलासा इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शादी की बुनियाद, निकाह की बुनियाद तकवे पर होनी चाहिए, दीनदारी पर होनी चाहिए, हया पर होनी चाहिए, पर्दा पर होनी चाहिए, इज्जत और आबरू पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ख्याल अगर आप रखेंगे, यकीन मानिए कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। वरना ये दुनिया तो आप जानते हैं, बारहा सुनते रहते हैं, दुनिया फना हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जब इस बात ये खुशगवार मौका हमें जब नसीब फरमा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो शुरूत, ये जो कायदे कानून रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे घर के बच्चियों को बाहया बना, बापर्दा बना, नेक सीरत बना, बाकिरदार बना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.